मुझे आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भोजन करके बहुत प्रसन्न हूँ और आप भगवान आपकी आत्मा को खूब खुशी दे और आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवहार। और मुझे है ना बहुत खुशी हुई, मैं अपनी बीवी को बता रहा था आके, इसको मेरी वाइफ है, मैं कहा वो केरला समाज है उनका जो लंगर है, मैं कहा मैं लेके आया मुझे उनका लंगर चलता है, मैं कहा आप खाते हैं जाने के। हाँ जी, तो मैं बाद में 1.5 साल हो गया जहाँ इलाज करवाते हुए, क्योंकि अगर जे बाहर से खाना खाना पड़े तो बहुत मुश्किल है जी। ये तो बहुत बड़ी सेवा है, सबको जाने के जहाँ पे हेल्प करना चाहिए, इन लोगों के साथ जाने के और ज्यादा जुड़ना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा अभी ये केरला समाज के लोग जहाँ जितने सेवा करने आए, मुझे बहुत खुशी हुई जी। हेल्प करनी चाहिए सभी को जी। എല്ലാവർക്കും കേരള സമാജത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള സമാജം എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ 49 കൊല്ലമായി ചണ്ഡീഗഡിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മൾ കോവിഡിന് മുമ്പായിട്ട് 4 വർഷം നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് സെക്ടർ 32 ഹോസ്പിറ്റലും നമ്മുടെ PGIയിലും മറ്റും ഫുഡ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് സമയത്ത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെയും അഭിപ്രായ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ സംഭവം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ വീണ്ടും തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മുടെ ചണ്ഡീഗഡിലെ ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമെല്ലാം നമ്മളുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു, രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ഈ ഫുഡ് PGIയിലേക്കും മറ്റും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും മറ്റും ഫുഡ് വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കേരള സമാജത്തിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സും നല്ലവരായ ജനങ്ങളും സഹകരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് 20/8/2023 നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മളിത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ PGIയിലോ നമ്മൾ സെക്ടർ 32 ഹോസ്പിറ്റലിലോ നമ്മൾ കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അനുവാദത്തോടു കൂടി നല്ലവരായ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ മലയാളീസിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ലോക്കലായ ആൾക്കാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആദ്യ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാനൽ രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ കാണുക, കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ലൈക്കുകളും മറ്റും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹമായ പ്രതീക്ഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Welcome all to Kerala Samajam YouTube channel. This Kerala Samajam Chandigarh has been in inception since 1974 in Chandigarh. We have been doing a lot of activities in Chandigarh, especially the food distribution, which we have been doing for the past 4 years before COVID. Again, on the date of 20th August 2023, we are rejuvenating the food distribution to the needy at the very target places such as PGIMA, Chandigarh. We appreciate all the volunteers and the well-wishers who have been a part of the Samajam and have helped us in each and every activities of the Samajam. We'll continue to do such events regularly every month. I'm looking forward to everyone's, including Samajam members and as well as local community, for their participation and their appreciation. I request you all to please subscribe and like our YouTube channel. And again, once again, I appreciate your love and affection given to us all these years. Thank you. आप सब लोगों का केरला समाजम चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। हम 1974 से चंडीगढ़ में वेलफेयर एक्टिविटीज़ लाइक ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप करते आ रहे हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण कॉन्टिन्यूटी नहीं कर पाए। लेकिन आज 20 अगस्त 2023 से फूड डिस्ट्रीब्यूशन इन PGI JMC at 32 फिर से जारी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमारे साथ रहेगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर केरला समाजम चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।
नमस्ते अंकल। अंकल हम ना केरला समाजम से आए हुए हैं। केरला समाजम के एसोसिएशन के साथ मेंबर्स हैं। ये हम काफी सालों से करते आ रहे हैं, तो आपको कुछ बोलना है? अच्छा वाजी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भोजन करके बहुत प्रसन्न हूँ और आप भगवान आपकी आत्मा को खूब खुशी दे और आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा व्यवहार। वाजी, हम ये लंगर कर रहे हैं, ये आपको कैसे अच्छा लगा? अभी बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बड़ा धर्म हूँ तो मैं भी बहुत चलो मैं अपने को नहीं कहता, आपका बहुत बहुत नहीं, बहुत actually अच्छा लगा। ये पीजे में काफी लोग हैं जो नीडी लोग होते हैं ना, उनको खाना चाहिए, जो मिलना चाहिए। जैसे अब आए थे, उनको भी बाहर से मिलना बहुत मुश्किल होता है, हाँ, ठीक है ना, उन लोगों के लिए हम कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ा धर्मार्थ का काम किया, बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया किया और ऐसे ही करते रहना। केरला से है, केरला का अच्छा है, इधर केरला समाज है। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह बेटा। नमस्ते। आप कहाँ से हो? हम अम्बाड़े सिटी से आगे अपना ननोड़ा पड़ा है, देवीगढ़ के पास। हाँ जी, यहाँ पे क्या मतलब हॉस्पिटल में? हाँ जी, हॉस्पिटल में इसका गुड़े का ट्यूमर पता है जी तुम आपको? तो अभी ना हम वैसे केरला समाजम में एक एसोसिएशन है चंडीगढ़ का, वही हम ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं यहाँ पे। तो आपका क्या विचार है? मतलब हम तो पहले करते आ रहे हैं, अभी भी हम यही इन्हीं लोगों के लिए, आप जैसे आप लोगों को, आप इतने दूर से आते हो, स्पेशली पीजीआई तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तो आप स्पेशली दूर से आते हो, कई बार खाना नहीं मिलता है, तो हम ऐसे करते, तो आपको कुछ है, कुछ कहना है? अच्छा करा जी आपने ये, मतलब गरीब वास्ते तो ये अच्छा जान बहुत दिया, ये दाल रोटी पेट भर जाए गरीब बंदे का जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो अच्छा मालिक आपको दवाई देगा जी आपको। हाँ जी, धन्यवाद। ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्ते अंकल, आप कहाँ से हो? अंबाले से जी, यहाँ पे मरीजा जी, रीजा जी दाखिल है। अब हम वैसे केरला से हमारा एसोसिएशन बना हुआ है केरला समाजम में, हम है चंडीगढ़ में। तो लाइक हम ये फूड वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमें 2-3 मंथ्स हो गए करते हुए, पहले भी हमने करा था। तो आपका क्या विचार है, मतलब ऐसे करना अच्छा लगता चाहिए? है जी, बहुत अच्छा लगता है जी। देख हमारे को खाना मिल जाता है, मरीज को दवाई मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है हमारे को। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नमस्ते अंकल, मैं केरला समाजम की मेंबर हूँ यहाँ की। तो हम यहाँ चैरिटी ये करते आ रहे हैं, फूड डिस्ट्रीब्यूशन। और आप कहाँ से? मैं टाटके से जी, गाँव टाटका, मैं लाडवे के पास। तो आपका क्या विचार है, ऐसे हम करना चाहिए लाइक, क्योंकि आप लोग बहुत दूर से आते हो, स्पेशली हॉस्पिटल्स में, है ना? तो आपका क्या? मैं तो अपनी सस्सू को लेके आ रहा जी, वो बीमार है हॉस्पिटल में, पीजीआई में, इमरजेंसी में ही पड़ी है। आपका क्या विचार है मतलब इस फूड चैरिटी का? जी ठीक है, जो मान लेके हम खाना दे रहे गरीबी आदमी ने, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सत श्री अकाल। मैं एक्चुअली केरला समाजम एसोसिएशन है चंडीगढ़ का, वहाँ से हम लोग आए, वही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते आ रहे हैं। हमें 2 मंथ्स हो गए अभी कर रहे हैं, उससे पहले भी हम कर ही रहे थे। तो आपका क्या विचार है, ऐसे क्या करना चाहिए? मतलब ये आपको सही लग रहा है कि ऐसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करके, मतलब जो? जी बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। तो ये मैंने जब पढ़ा भी केरला समाज से, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर से भी है ना जो लोग यहाँ रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। तो हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितने भी पेशेंट ही आते हैं ना पीजीआई में, जितने भी यहाँ इलाज कराते हैं, जा रहे करके इलाज कराते हैं, जरूर इनकी जाने कि इस समाज में जो भी सेवा करते हैं इनमें हिस्सा देना चाहिए, दान करना चाहिए, तो जो आगे और बढ़े जी। आप वैसे कहाँ से हो? जी मैं जलंधर से हूँ। तो ये मेरी वाइफ है, कार एक्सीडेंट में जैसे हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसलिए जाने के भी इलाज हमारा भी पीजीआई में चलता है। हाँ जी, तो अभी जब लंगर भी खाना होता है ना हमें, तो यहाँ पर ही हम खा के पीजीआई के गेट पर आकर लंगर खाते हैं जी यहाँ। तो ये एक तरह से अच्छी चीज है ना कि लंगर भी हमें साथ साथ रखना चाहिए, मतलब यहाँ पे हर रोज, क्योंकि काफी मतलब लोग होते हैं जो कुछ खाए भी नहीं होते, फिर भी आते हैं हॉस्पिटल में। आपका? हाँ जी, ये देखो जो भी यहाँ पर है ना पेशेंट आते हैं, पहले तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों से आते हैं, जो भी उनका घर बार भी बिक जाता है, जैसे जितनी भी पूंजी जमा होती है ना वो लग जाते हैं पैसे। जब तक यहाँ पीजीआई आते हैं ना उनके पास कुछ नहीं बचता। हाँ जी। क्योंकि अगर यहाँ पर ये ऐसे खाना मिलेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जाने के बाहर से खाना वो लेगा, जहाँ पर इलाज ऐसे चलता है 6 महीने 1 साल,
कई बार 1.5 2 साल भी हो जाते हैं जी। हमें 1.5 साल हो गया जहाँ इलाज करवाते हुए, क्योंकि अगर जे बाहर से खाना खाना पड़े तो बहुत मुश्किल है जी। ये तो बहुत बड़ी सेवा है, सबको जाने के जहाँ पे हेल्प करना चाहिए, इन लोगों के साथ जाने के और ज्यादा जुड़ना चाहिए। और मुझे है ना बहुत खुशी हुई, मैं अपनी बीवी को बता रहा था आके, इसको मेरी वाइफ है, मैं कहा वो केरला समाज है, उनका जो लंगर है, मैं कहा मैं लेके आया, जो उनका लंगर चलता है, मैं कहा आप खाते हैं जाने के। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था इनके साथ। कमियां लग रहे कुछ ऐसे जैसे हम सारे मिलके बनाया हुआ है जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसे भी आप इतनी दूर से जितने भी हैं, चाहे आप जहाँ जॉब करते होंगे, जितने भी इतनी दूर से आकर के भी जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं। अच्छा जी, ठीक है दीदी, मुझे बहुत खुशी हुई सच में, जाने के इतनी दूर से आकर के लोग यहाँ पर सेवा करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा अभी जो केरला समाज के लोग जहाँ जितने सेवा करने आए, मुझे बहुत खुशी हुई जी। हेल्प करनी चाहिए सभी को जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മൾ സെക്ടർ 12 PGIയുടെ മുമ്പിലെത്തി നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടമാനം ആൾക്കാർ തടിച്ചുകൂടി. നമുക്കുള്ള സംതൃപ്തിയുണ്ട് കേരള സമാജത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ ചേർന്ന സകല ആൾക്കാർക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് രണ്ടാമതും ഉണ്ടാകണം. കേരള സമാജം എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പായാലും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ക്യാമ്പുകളായാലും ഇതുപോലെ ഫുഡ് സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും നമ്മൾ തുണി സർവ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും കേരള സമാജം എന്ന സംഘടന ഒരുപാട് മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇനിയും കണ്ടമാനം ജനങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ ഒരു ഖേദം നമുക്കുണ്ട്. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.